اہل غزہ کے لہو عرش تلک جا پہنچے، اہل غزہ کے لہو عرش تلک جا پہنچے، صاحب عرش کا حلقہ سعتاب آیا ہے، صاحب عرش کا حلقہ سعتاب آیا ہے، کی شکل میں ظالم پہ عذاب آیا ہے، بہت اچھا، آگے کی شکل میں ظالم پہ عذاب آیا ہے۔ اکثر غریب ہی بچے پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ سے تو غریب ہے، اگر یتیم ہے اور یعنی جس کے والد نہیں ہے تو یتیم ہے، تو ان کو میں تو سب سے پہلے کہتا ہوں کہ بالکل ہر طرح کی فری، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، صرف آ کر کے وہ ایڈمیشن کر لے، ہاں کہ نام لکھا لے، جو بھی ہے اس کے لیے سارا کچھ فری انتظام کیا جائے گا، اس کا رہنا سہنا کھانا پینا کتاب اتاب جو بھی چیز لگتی ہے، 100 یا 50 روپیہ 200 روپیہ زیادہ سے زیادہ فیس ہے، اور اس کے بعد بھی اس میں سے بھی آدھے ہیں کہ بالکل اور غریب ہیں، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، بس تعلیم کے انتظام کیا ہمارے چیئرمین جناب مولانا فیروز عالم ندوی حفظہ اللہ، ان کی انتھک کوشش ہے اور ان کا ارمان ہے کہ ہماری قوم کی بیٹیاں کسی سے پیچھے نہ رہے، ہر ایک کے مقابلے میں وہ شانہ بہ شانہ وہ کھڑی ہو سکیں، کیا بات ہے، اور ہر طرح کی علوم و فنون سے ان کو دیکھیے اس وقت ہم سپول ضلع کے بسنت-پور پرکھٹ کے کچھ گاؤں پنچایت میں موجود ہے، اور ہم آپ کو بتائیں کہ آج یہاں پر بچیوں کا جو ایک ادارہ ہے فاطمۃ الزہرا للبنات، اس میں جشن حدیث طالبات، اس کا ایک شاندار پروگرام ہوا ہے، بچیوں نے جو پورے سال پڑھا ہے وہ جس طریقے سے انہوں نے اپنا پرفارمنس دیا ہے، اسی کے ایک طریقے سے کہیے تو جشن اور حدیث کے یہاں پر درس ہو رہا تھا۔ ہم آپ کو بتائیں کہ ہمارے سامنے جس شخصیت کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی باکمال شخصیت ہے، حضرت مولانا فیروز، انہی کی رہنمائی میں، انہی کی رہبری میں بہت سارے ادارے اس طرح کے چلتے ہیں جہاں بچے اور بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جاتا ہے، بلکہ ایک طریقے سے ایجوکیشن کا جال بچھا دیا ہے انہوں نے۔ ابھی ہمارے سامنے بہت ساری بچیاں ہیں، دیکھا ایک بار کیمرہ مین دکھائیے، ان بچیوں نے یہاں پہ پورے سال علم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کیا ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ان بچوں کو دیکھا جائے اور ان کو آپ لوگ دعا دیں۔ تو ہمارے ساتھ کچھ بچیاں ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ تک پہنچائیں گے کہ یہاں پر کس طرح کی پڑھائی ہوتی ہے، کیا ایجوکیشن دیا جاتا ہے، ہم ان سے کچھ سنیں گے بھی اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ شکل میں ظالم پہ عذاب آیا ہے، بہت اچھا، آگے کی شکل میں ظالم پہ عذاب آیا ہے، مصحف عدل کا ایک چھوٹا سا باب آیا ہے، مصحف عدل کا ایک چھوٹا سا باب آیا ہے، تو نے پوچھا تھا کہ ہے کون محافظ تیرا، تو نے پوچھا تھا کہ ہے کون محافظ تیرا، دیکھ لے میرے محافظ کا جواب آیا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، دیکھ لے میرے محافظ کا جواب آیا ہے، اہل غزہ کے لہو عرش تلک جا پہنچے، اہل غزہ کے لہو عرش تلک جا پہنچے، صاحب عرش کا حلقہ سعتاب آیا ہے، صاحب عرش کا حلقہ سعتاب آیا ہے، آگ کی شکل میں ظالم پہ عذاب آیا ہے، مصحف عدل کا ایک چھوٹا سا باب آیا ہے، کبر جس شخص کا اڑتا تھا ہواؤں میں فقط، کبر جس شخص کا اڑتا تھا ہواؤں میں فقط، عاجزی اوڑھ کے وہ کھانا خراب آیا ہے،
आजिज़ी ओढ़ के वो खाना खराब आया है। नस्ल शाहीन का हर आन सताने वाला, नस्ल शाहीन का हर आन सताने वाला, देख ले मेरे मुहाफिज का जवाब आया है। बहुत अच्छा। आग की शक्ल में जालिम पे अज़ाब आया है। बहुत अच्छा। आग की शक्ल में जालिम पे अज़ाब आया है। क्या नाम है आपका? सुरैया परवीन। सुरैया परवीन। किस क्लास में पढ़ती है आप? अरबी अव्वल। अरबी अव्वल में? जी। माशाल्लाह से बहुत अच्छा सुनाया आपने। कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पर? अच्छी। अच्छी पढ़ाई होती है? जी। सारे टीचर लोग अच्छे से पढ़ाते हैं? जी। फिरोज आलम नदवी साहब हैं। ये शख्स नहीं बल्कि शख्सियत है। कहते हैं कि चेहरा मिस्ल किताब, आंखों पर शीशों का हिजाब, चौड़ी पेशानी नामवरी की कहानी, शख्सियत बाकमाल, हुस्न में मिसाल हज़रत मौलाना फिरोज आलम नदवी साहब हैं, जिन्होंने एक कहिए तो एजुकेशन का जाल बिछा दिया है इस इलाके में। और ना जाने हर साल कितने बच्चे और बच्चियां इनकी मेहनत और इनके इदारे से अपने आप को इस्तिफ़ादा करते हैं और तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करते हैं। इनको हम लोग जितनी भी दुआएं दें, जितना भी सपोर्ट करें, बहुत कम है। हज़रत आज आपके इस बच्चियों के इदारे में हम आए हैं, यकीनन देख करके दिल बाग बाग हो रहा है। कैसे आप इतनी मेहनत कर लेते हैं? इतना बड़ा सजा दिया आपने इसको। और इसके लिए मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। जी शुक्रिया। और आप यहाँ आए हैं उसके लिए भी आप भी मुबारकबाद किए हैं। चूँकि आप कवर करते हैं और इससे पहले भी मेरा एक जो अपना ये इदारा था, वहाँ लड़कियों का एक इदारा खुसूसी तौर पर था, जामियतुल बनात अल इस्लामिया फैसलाबाद सुपौल बिहार। वो उसमें चूँकि यहाँ के बाद वहाँ एक आला तालीम की तक के लिए, फजीलत तक के लिए, फिर दौरा उस वहाँ तक की तालीम के लिए वहाँ इंतज़ाम किया हुआ है और आगे करना भी चाह रहे हैं। चूँकि बच्चियों की इतनी कसरत है कि हम एक जगह कहीं नहीं रख सकते हैं जी। और उतना मेरे पास कैपेसिटी भी नहीं है, लेकिन लोगों का एक एतमाद है, हो गया है, तो हमने फिर इस इदारे को क़याम किया और इसमें बच्चियों के लिए अलग तालीम के इसके साथ इनके रहन सहन, पढ़ाई लिखाई के लिए हम यहाँ पूरा इंतज़ाम करते हैं। फिर यहाँ से जब आखिर क्लास की तालिबा होती हैं तो वो हमारे वहाँ कैंपस में चली जाती हैं, तो और वहाँ पर हम वहाँ तालीम देते हैं। हजरत आपकी सरपरस्ती में अभी कितने इदारे तकरीबन मतलब चल रहे हैं और कितने बच्चे और बच्चियाँ तकरीबन हर साल इल्म रोशनी से ज़ेवर से आरास्ता होते हैं? अभी मेरे जो है मतलब 4-5-6 हैं लगभग। अच्छा। हाँ, और उसमें अभी जो मेरे पास चूँकि सबका डाटा मेरे साथ ये रहता है, तो लगभग 2700 से 2700 मतलब 2900 का हमने एडमिशन लिया था सारे 2900 बच्चियों का। ये सब बच्चे मिला करके हर सूबे से हमारे हमने ये लिया था। अभी इस वक्त जो है 2300 कुछ बच्चे अभी बचे हुए हैं। और उसके अलावा हमारे फारगिन की तादाद भी है और बीच में बहुत सारे बच्चियों की शादियां हो गई, बहुत सारे ये हो गए आते हैं, तो इसमें कुछ जो है घटता बढ़ता रहता है। लेकिन एक बात है कि लोगों का एक पूरा भरोसा है कि वहाँ भेजने के बाद तालीम होती है, इसलिए लोग हमारे ऊपर एतमाद करके यहाँ भेजते हैं। फातिमतुज़ ज़हरा की जिन बच्चियों ने एजुकेशन हासिल की है और कुछ लोग शायद के फारिग भी हो रहे होंगे यहाँ से। हाँ, यहाँ से आखिरी क्लास के तालिबात हैं। कै तालिबात हैं? 19 तालिबात यहाँ से जो है आखिरी क्लास पढ़ करके क्या कलिमात आप उनके लिए कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि माँ है तो जहान है। माँ की वजह से ही सब कुछ ये है। अगर माँ तरबियत के लिए सबसे पहला गोद वही होता है माँ जैसे, तो ये यहाँ से पढ़ के जाएंगे और एक अच्छी माँ बनेंगी। और जब एक अच्छी माँ बनेंगी तो औलाद कामयाब होगा, इससे हमारा देश मुल्क सब कामयाब होगा, तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। हजरत, जो लोग अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं या कुछ मजबूरी की वजह से नहीं पढ़ाना चाहते, कुछ गरीब लोग भी होते हैं जो चाह करके भी नहीं पढ़ा सकते हैं, क्या कुछ रहेगा मैसेज? हम तो एक बात जानते हैं आपके यहाँ अक्सर गरीब ही बच्चे पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह से। तो गरीब है, अगर यतीम है और यानी जिसके वालिद नहीं है, तो यतीम है तो उनको मैं तो सबसे पहले कहता हूँ कि बिल्कुल हर तरह की फ्री, उसके लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ आकर के वो एडमिशन कर ले, हाँ के नाम लिखा ले, जो भी है उसके लिए सारा कुछ फ्री इंतज़ाम किया जाएगा। उसका रहना सहना, खाना पीना, किताब उताब जो भी चीज़ लगती है सब फ्री है। उसके अलावा जो गरीब हैं बस ये है कि उससे ज़्यादा नहीं, 100-50 रुपये फ़ीस लेते हैं और 100 या 50 रुपया 200 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस है। और उसके बाद भी उसमें से भी आधे हैं कि बिल्कुल और गरीब हैं, तो हम कहते ठीक है ये भी जो है छोड़ देते हैं। बस तालीम के इंतज़ाम किया जाता है,
और लोग जो है हम चाहेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और हम गरीब बच्चियों के लिए खुसूसी तौर पर ये सब इदारा है और हम काम कर रहे हैं। आपका भी ताउन रहे गरीब तमाम, ताकि ये कौम की बच्चियाँ ये आगे बढ़ सके। खुशी मिलती है हजरत देख करके इन सब चीज़ों को? खुशी तो इतनी मिलती है कि आप तसव्वुर मतलब शायद होगा कि आपके बच्चे या सबके जो बच्चे बच्चियां होती हैं तो जब देखते हैं कि छोटा सा लड़खड़ाते हुए छोटा बच्चा को चलना सिखाया जाता है, ऐसे चलो चलो पकड़ के हाथ, उसके बाद जब वो पूरा दौड़ने लगता है तो बाप कितना खुश होता है, हाँ बेटा बस ताली बजाता है तो खुश हो जाता है, बाप जैसे खुश होता है। इसी तरह मैं जब इन छोटे बच्चियों को लेकर के यहाँ तालीम देते देते एक मरहला तक पहुँचा देता हूँ, फिर उसके बाद फारिग करता हूँ तो दिल इत्मीनान हो जाता है कि नहीं मैंने कुछ यहाँ दिया, तालीम सिखाया है। तो बहुत बड़ा मैसेज दिया आपने हजरत। शुक्रिया। देखिए कहते हैं कि ये मदरसा है कोई मैकदा नहीं साकी, ये मदरसा है कोई मैकदा नहीं साकी, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। पूरी भारत में या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आप लोग मुझे देख रहे हैं, हज़रत मौलाना ने जो मैसेज दिया है आपको, अगर सही माने में आप गरीब हैं, आपके पास वसात नहीं है फ़ीस देने के लिए, तो ज़रूर ईमानदारी के साथ जो नीचे नंबर चल रहा है इस नंबर पे कांटेक्ट करें और सीधे अपने बच्चों का आकर के इस मदरसा में एडमिशन कराएं। या अगर आप लोग देना चाहते हैं, जो लोग मदद करना चाहते हैं, जो लोग इस्तिताअत रखते हैं मदरसे में मदद करने के लिए, तो एक बार फातिमतुज़ ज़हरा ज़रूर आइए, यहाँ पर घूम के देखिए कि किस तरह एजुकेशन का सिस्टम है और किस तरह बच्चियों को तालीम दी जाती है। और अगर आप मदद भी करना चाहते हैं तो हज़रत मौलाना से मिलिए और दिल खोल करके इस तरह के मदरसे की मदद करिए, ताकि हज़रत और भी ज़्यादा से ज़्यादा मदरसे खोल सके और आप कौम की बच्चियों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कर सके। जी, सबसे पहले मैं आपके इस न्यूज़ के माध्यम से हम सबको मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सबको हम ये दावत देना चाहते हैं कि सबसे पहले आप तालिबात की, अपनी बेटियों की तालीम के लिए ऐसी जगह इंतखाब करें जहाँ खालिस बच्चियों की पढ़ाई होती है जी, और उसको हर तरह की तालीम से उसको आरास्ता पारास्ता किया जाता है। अरबी, फ़ारसी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, यानी तमाम तर उलूम और मैथमेटिक्स सारी चीज़ें यहाँ इंतज़ाम है। और इसमें खुसूसन हमारे चेयरमैन जनाब मौलाना फ़िरोज़ आलम नदवी हफ़िज़हुल्लाह, इनकी अनथक कोशिश है और इनका अरमान है कि हमारी कौम की बेटियां किसी से पीछे ना रहे, हर एक के मुकाबले में वो शाना बाशाना वो खड़ी हो सकें। क्या बात है। और हर तरह के उलूम फ़नून से उनको आरास्ता पारास्ता किया जाए, जहां उनको तालीम से मुज़य्यन किया जाए, तरबियत से भी, अखलाक़ी ज़ेवर से उनको बिल्कुल मुज़य्यन करके यहाँ से हम भेजते हैं। और यही हुक्म है हमारे चेयरमैन साहब का भी कि हर इदारे में जितने शोबेजात हैं उनके हर एक शोबे में उनका यही कहना है कि पैसा के लिए कोई फ़िक्र नहीं, तालीम बेहतर हो उसके लिए हमको लाखों रुपया खर्च करना पड़े, कौम मिल्लत की बेटियां बेटे सब ज़ेवर तालीम से आरास्ता पारास्ता हों, ये उनका अज़्म है। और इसी हौसले के साथ उन्होंने तमाम ज़िम्मेदारों को ये आदेश भी दिया है कि आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है।